مشق جو لٹکی ہوئی ہے، لٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پانی کی مشق ہوتی تھی یہ اس کو لٹکا کے رکھتے تھے، ایک رسی ادھر سے بند کر دی، ایک رسی ادھر سے بند اس میں، تو پھر بوقت ضرورت اس کو کھول لیا اور اس میں سے پانی نکالتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک مشق لٹکی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ بکری کی کھال ہے۔ کس کی؟ یعنی وہ بکری خود مر چکی تھی، ہم نے ذبح نہیں کیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا کھال بنا لیا، تو حضرت یہ مردار کی کھال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کو دباغت دیت کی تھی؟ میں نے کہا جی کی تھی۔ آپ نے فرمایا بس اس کو آپ نے دباغت کی اور اس کے بعد یہ پاک ہو گیا، اس کو پانی پلاؤ۔ سوال ہے کہ پھر انہوں نے پانی کیوں رکھا تھا اس میں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر برتن میں پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا، بعض مرتبہ پانی ہوتا ہے برتنوں میں استعمال کے لیے، مثلا کپڑے دھونے ہیں اور دوسری چیزیں دھونی ہیں اور دوسرے وضو وغیرہ بنانے ہیں، تو پینے کا مسئلہ الگ ہے اور استعمال کا مسئلہ الگ ہے۔ تو گارا بھی بناتے تھے وہ لوگ، جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے، مختلف قسم کے کاموں میں اس کو لاتے تھے، وہ گھر والے خود بھی اسے پیتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا حضرت ہم تو اس سے خود پیتے نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو مردار کی کھال ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کو دباغت دی تھی؟ حضرت بالکل دی تھی۔ فرمایا اس کا دباغت دینا اس کو پاک ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جو اس کے اندر رکھا ہوا ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پلاؤ پانی، تو ان گھر والوں کا مسئلہ بھی معلوم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشق سے جو ہے پانی پی لیا۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا نتوضأ من الموت رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور زمین پر چلنے کی وجہ سے وضو نہیں کرتے تھے۔ وضو اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل عرب کے یہاں بعض لوگوں کے یہاں جوتا ہوتا تھا، بعض لوگوں کے پاس جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ہم چلتے رہتے تھے، جیسے سفر میں چل رہے ہیں، جیسے اور جگہوں میں چل رہے ہیں، تو گرد و غبار پانی کے پاؤں کے اوپر چڑھتا رہتا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جب باوضو ہوتے تھے، پھر جب ہم چلتے تھے یا کام کرتے تھے تو ہمارے پاؤں کے اوپر گرد و غبار لگتا تھا، تو ہم اس کی وجہ سے وضو نہیں بناتے تھے بلکہ وضو پہلے سے ہے اور نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر وہ باوضو ہیں کیا ہے لیکن گرد و غبار بہت لگا ہوا ہے، پیروں پر گردہ چڑھا ہوا ہے، پیروں کے اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے، ہاتھوں میں گردہ چڑھا ہوا تھا، چڑھتا ہی ہے، تو اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں وہ پہلے سے باوضو ہوں، الگ سے وضو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے وضو پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر چلتے چلتے ہمارے پاؤں ناپاک ہو جاتے تھے، پاؤں کے اوپر گندگی لگ گئی، پاؤں کے اوپر گندگی لگ گئی، ہم پورا وضو نہیں کرتے تھے، پورا وضو نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اسی جگہ کو دھوتے تھے جس جگہ پر گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ کیا؟ ایک ہے وضو کا ٹوٹ جانا، ایک ہے وضو کا ایک ہے کسی عضو کا ناپاک ہونا۔ وضو یعنی پھٹ تیل چھ بوت چھلن، تیل چھ ناڑ تہ چھلن، پورا وضو بناون، مگر بالفرض اگر زن اس ناپاکی پہ کھور پیو، کیا پیو؟ باوضو چھ ناپاکی لڑے کت کھورس، سوال چھ وضو پھٹا کن وضو پھٹ نہ کیا ناپاکی لڑے کھورس وضو کیا پھٹ؟ وضو پھٹن تیل ییٚلہِ بدنہٕ منٛز أنٛدرٕ ناپاکی نیرِ، البتہ کھور گوٚو ناپاک، کھور گوٚو کھورٕے یوت چھُ چھلُن، سورُے وضو چھُنہٕ کرُن کینٛہہ۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْتِ، ہم لوگ جو ہے زمین پر چلنے کی وجہ سے ہم پھر وضو کو دہراتے نہیں تھے، یہ آپ نے مسئلہ فرمایا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواہ البخاری۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر کتے آتے تھے جاتے تھے، اور ہم ان کتوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے مسجد کو دھوتے نہیں تھے، مسجد کو دھوتے۔ اس میں بہت سارے مسائل فقہا نے نکالے ہیں۔ کیا مسئلہ؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کی شکل کیا تھی؟ تو وہاں مدینہ طیبہ میں انہوں نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، مسجد نبوی کے بالکل ساتھ وہ ایک قسم کی چھوٹا سا عجائب گھر بنایا ہے،
एक में तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ उन्होंने रखी हैं, एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ वो मालूमात है। तो उसमें उन्होंने पुराने ज़माने की मस्जिद नबवी भी बनाई है। और एक जगह मदीना तैयबा में एक है, एक म्यूज़ियम, वहाँ सिर्फ यही मस्जिद नबवी का और उसी में है। तो पुराने ज़माने के मदीना तैयबा का नक्शा उन्होंने बनाया है कि बनु कुरैज़ा कहाँ थे और बनु नज़ीर कहाँ थे और खंदक कहाँ खोदी गई थी, बाकायदा खंदक भी बनाई हुई है। तो बराबर उसी ज़माने और खजूर के दरख्त किस तरह से थे और कुफार का लश्कर कहाँ से आया था, ये सारा उन्होंने उसमें बना लिया। तो उसमें उन्होंने मस्जिद नबवी की वो पुराने ज़माने की एक शक्ल भी बना ली है। उसकी शक्ल क्या थी, तो उसमें यह था कि दरवाज़ा नहीं था, दरवाज़ा इब्तिदा की बात है। तो सिर्फ सामने वाले कुछ जो है सफ़े थे उनमें छत लगी हुई थी और इधर से एक दीवार गई उधर से एक दीवार गई, तो दरवाज़ा है ही नहीं, दरवाज़ा और दीवारें भी बहुत पस्त हैं। फिर उसके बाद दूसरी तामीर हुई, तीसरी तामीर हुई, और वो जो पहले मस्जिद अक्सा की तरफ जो किबला था तो वो भी बनाया है, और उसके बाद जो किबला बदल गया है तो फिर वो भी बनाया, ये सारी चीज़ें। तो उस ज़माने में ये कुत्ते जो थे आते रहते थे, मदीना तैयबा में कुत्ते बहुत थे। अलबत्ता काले कुत्तों के मारने का आपने हुक्म दे दिया, मारो काले कुत्तों को। फिर फरमाया कुत्तों को मार डालो। आप कुत्तों को मार डाला, कुत्ते वहाँ से कुछ भाग गए, उसके बाद अब मदीना तैयबा में कुत्ता नहीं रहा। लेकिन जो देहात के लोग आते थे मदीना तैयबा किसी काम से, तो कुत्तों की आदत होती है अपने मालिक के साथ हो लेते हैं, तो सहाबा किराम फिर डंडा उठा के उसके पीछे चल देते थे। आपने जब देखा कि कुत्तों की तो नफरत इनके दिलों में बैठ गई, इसलिए कि अहले अरब कुत्तों के साथ वही मामला करते थे जो आजकल अंग्रेज़ कुत्तों के साथ करते हैं। कहीं इस कंधे पर रख लिया, कहीं गोद में बिठा लिया, कहीं साथ में बिठा लिया। तो कुत्तों की नफरत दिल में डालनी थी, तो अब देखे नफरत तो बैठ गई है, कुत्ते को देखते ही तो फ़ौरन डंडा उठाते हैं। आपने फरमाया आप इन कुत्तों को क्यों भगाते हैं? मैं कहा हज़रत ये तो कुत्ते हैं। आपने फरमाया ये भी तो मखलूक है अल्लाह की, छोड़ दो इन्हें। तो आप कुत्ते रहते थे वहाँ, लेकिन लोगों के साथ कोई उनका ताल्लुक़ नहीं था इस तरह का। तो ये कुत्ते मस्जिद नबवी में भी आते थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते थे कि ये मस्जिद में कुत्ते रहते थे, हम आते थे उनको भगाते थे, तो ये आते थे जाते थे, तो इसकी वजह से हम मस्जिद पाक को धोते नहीं थे। तो मसला क्या है? मसला यह है कुत्ते का जो जिस्म है, बाहर वाला जिस्म, ये अगर किसी चीज़ के साथ लग जाएगा तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी। कुत्ते के पाँव अगर किसी जगह पर रहे तो वो जगह नापाक नहीं होगी। इससे मसला निकला अगर मस्जिद के अंदर कुत्ता घुस आया इत्तिफाकन तो मस्जिद उससे नापाक नहीं होगी। चलते चलते अगर कुत्ता हमारे बदन के साथ रगड़ खाकर चला गया तो हमारा बदन नापाक नहीं होगा, इसलिए कि कुत्ते का बाहर वाला जिस्म जो है ये दूसरी चीज़ को नापाक नहीं करता है। हाँ, अगर उसके ऊपर और कोई नापाकी लगी हुई है तो अलग मसला है, लेकिन खुद कुत्ते का जिस्म जो है ये किसी की चीज़ के साथ लग जाएगा तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी। देखो, खाना हराम होना अलग है और उसका बदन के साथ लग जाना ये अलग। हाँ, अलबत्ता कुत्ते के जो है मुंह का जो है वो लुआब, क्या वो अगर लग जाए, कपड़े में लग जाए, कहीं लग जाए, वो नजुसल ऐन है, नापाक है, नजासत गलीज़ा है, उसको धोना ज़रूरी है। लेकिन ये जो कुत्ते रहते हैं हमारे आसपास, ये ज़बान बाहर नहीं निकालते हैं, ये वैसे खामोश रहते हैं ऐसे मुंह बंद करके। लेकिन जो कुत्ता जब सफ़र करता है, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में उसको जाना हो तो, और वो जो थक जाता है तब ज़बान निकालता है। आप बाहर जाके देख लेना, इस वक्त किसी कुत्ते की ज़बान जो है बाहर लटकी हुई नहीं होगी। वो तो उस वक्त लटकी हुई होगी जब वो सफ़र कर रहा हो, और या जब बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो, क्या हो, गर्मी का बहुत ज़बरदस्त ज़ोर है, तो उस वक्त तो निकालेगा, वरना नहीं। तो इस तरह से अगर कुत्ता मस्जिद में घुस आएगा तो मस्जिद को धोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर बारिश बरसी है और कुत्ते का जिस्म जो है वो गीला हो गया है तो ज़ाहिर सी बारिश ही तो बरसी, तो आप वहाँ से गुजर गए और आपकी चादर जो है या आपका फेरन, आपका कपड़ा उसके साथ लग गया, तब भी धोने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इस रिवायत से फ़ुक़हाए किराम ने बहुत सारे मसाइल निकाले हैं। बज़ाहिर तो एक वाक़या है, लेकिन वाक़ये के साथ साथ इसमें मसाइल भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कानतिल किलाब तुक़बिलु व तुदबिरु। तुक़बिल तुदबिर के माने आते हैं आना और जाना, कि मस्जिद में ये आते और जाते थे। जब देखते कोई मस्जिद में नहीं, आगे घुस गए, और जब देखा कोई आया तो उसने दूर दूर कर लिया और भगा दिया वहाँ से। तो आते और जाते थे। क्योंकि मस्जिद नबी वसी भी थी, तो जो पीछे वाला हिस्सा था तो उसमें ये रहते थे। कभी घूमते भी थे, इधर उधर आके घूम चले गए, क्योंकि मस्जिद नबवी की वो शक्ल नहीं थी जो आज है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों के दरवाजे खुले रखो, जितने कुत्ते अंदर आ जाए, नहीं। उसके बाद तो आपने मस्जिद के जो अहकामात बयान फरमाए,
बाकायदा मस्जिद के लिए दरवाज़ा बनाया गया। आपने फरमाया छोटे बच्चों को भी मस्जिद में मत लाओ, क्योंकि उनके जो है वो पेशाब करने का क्या है, अंदेशा है। इस तरह से आपने फरमाया कि जिस चीज़ में बदबू हो वो इस्तेमाल करके मस्जिद में ना आए, वो कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खा कर ना आए। तो मस्जिद के आदाब आपने बयान फरमाए, लेकिन मसला अपनी जगह पर है, मसला और मस्जिद के आदाब अपनी जगह पर है। तो आजकल तो मस्जिदें बंद हैं, दरवाजे बंद रखने चाहिए, एहतिमाम भी करना चाहिए। ये नहीं कि मस्जिदें बस दरवाजे खुले रख लो, कुत्ते आ जाएंगे कुछ भी नहीं होगा। तो मसला अलग है और मस्जिद का अदब एहतराम अलग है। हाँ, मस्जिद से निकले आदमी फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर ले। अल्लाह का घर है, पाकीज़ा घर है, फरिश्तों का माहौल है, छोटे बच्चों को अंदर नहीं आने जाने देना है। इसी तरह से बाज़ जगह छोटे बच्चे मस्जिद में पढ़ते हैं, ये मसला समझना चाहिए। अगर वो बच्चे बालिग हैं, समझदार हैं, तो इजाज़त है क्या? मस्जिद में तालीम देना जायज़ है, लेकिन मस्जिद को दरसगाह बनाना जायज़? मुस्तकिल पुरानी मस्जिद को आप दरसगाह बना देंगे, दरसगाह का बोर्ड लगा देंगे, भैया मस्जिद बन गई क्या दरसगाह, इसकी इजाज़त नहीं। हाँ, मस्जिद में आप दर्स देना चाहें, मस्जिद मस्जिद रहे और आप दर्स दें वहाँ, उसकी इजाज़त है। तो यह है हुक्म कि छोटे छोटे बच्चे जो पेशाब भी कर लेते हैं और पाकी का उनको मस्जिद में पढ़ाना जायज़ नहीं। तो मस्जिद में पढ़ाना इसलिए कि कुछ पता नहीं है कि इनके कपड़ों पर क्या चीज़ लगी है, इनके पैर भी नापाक होते हैं कभी कभार। तो ये है, तो मस्जिद का एहतराम और इकराम अलग है और मसला अपनी जगह पर है। इत्तिफाकन कहीं घुस गया कुत्ता मस्जिद के अंदर तो मस्जिद के फ़र्श को धोने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ मरतबा बाज़ लोग पूरे मस्जिद के फ़र्श को उठा लेते हैं। अवलन ये भी पता नहीं वो घुमा कहाँ से, वो तो आया। और ये भी बात है कि कुत्ता जब मस्जिद में आ जाता है फ़ौरन बाहर निकलता है। क्यों? वो जब देखता है दाएँ बाएँ यहाँ तो दूसरा कुछ माहौल है, यहाँ तो कहीं निकलने का मौका भी नहीं, तो डर के मारे वो फ़ौरन बाहर निकल जाता है। तो बहरहाल ये मसला आया, क्योंकि इसका ताल्लुक भी पाकी और नापाकी के साथ है, इसलिए फरमाया फलम यकूनु यरशून शैअन मिन ज़ालिक, हम मस्जिद की किसी भी चीज़ को धोते नहीं थे। हालांकि मस्जिद में संगरेजे पड़े हुए थे लेकिन धोते नहीं थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि